کوئی خسارہ بغیر خسارے کے تو آج تک کوئی بجٹ ہوا ہی نہیں نا. ہم نے تو کبھی کوئی سرپلس بجٹ نہیں دیکھا ہے. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے تو خسارے کے بجٹ ہی دیکھے ہیں. یہ بجٹ بھی خسارے کا ہی ہوگا اور خسارے کی قیمت ادا کرتے ہیں ہم ہر بار کرتے ہیں. اس بار بھی میں تو آپ سے سادہ پوچھ رہا ہوں کہ اس بار ہم نے اس خسارے کی کتنی قیمت ادا کرنی ہے. کوئی نئی ٹیکس ہیں, کوئی اس میں ہمارے لیے ٹیکس کی شرح میں اضافہ ہے, کمی ہے, ٹیکس فری بجٹ ہے, ٹیکس کی بھرمار کا بجٹ ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ چیز تو یہ ہے کہ پچھلے 15 سال سے جو بجٹ آ رہا ہے, سوال کیا کہ 15 سال پہلے 18ویں ترمیم پاس کی گئی اور اس کی پھر جو فائنینشل کلوزز ہیں اس کا جو اثر ہے بجٹ کے اوپر. دیکھیے ہم میرا خیال ہے جو وفاقی حکومت ہے اس کو وداؤٹ مچ ریزن بجٹ کے حوالے. اب آپ سوچئے کہ میرا تخمینہ یہ ہے, میرا اندازہ یہ ہے کہ اس سال اس ہفتے میں جب وزیر خزانہ کھڑے ہوں گے کہ حکومت پاکستان کی آمدن 17,500 ارب یا 18,000 ارب کے قریب ہو. اب آپ سوچئے کہ 18,000 ارب تو آمدن ہے, اس میں سے 10,000 یا 11,000 ارب جو ہے وہ سود کی مد میں مختص کر دیا جائے گا اور باقی بچے گا کوئی 7.5 یا 8 کا سارا مختص کر دیا جائے گا صوبوں کے لیے, بیکاز وہ لازم ہے, وہ جو ہے اس کی جیب خالی ہو گئی تھی. 10-11 ہزار ارب سود میں چلا گیا, 7-8 ہزار ارب صوبوں کو دے دیا, اب خالی ہو 0/0. اور ابھی کیا رہ گیا ہے؟ ابھی کوئی 2,500 ارب کا دفاع کا بجٹ رہ گیا ہے, جیب خالی ہے. ابھی کوئی 2,000 ارب کی گرانٹس رہ گئی ہیں, جیب خالی ہے. ابھی کوئی 1,000 ارب کی پینشنز رہ گئی ہیں, جیب خالی ہو چکی ہے آلریڈی سے. پھر اسلام آباد کی حکومت کو چلانا, جس کو یہ کہتے ہیں رننگ آف دا سول گورنمنٹ, جو وزراء ہیں اور جو وزراء کی آرمی رکھی ہے ہم نے, 1,000 ارب اس کے لیے چاہیے, جیب خالی ہے. ترقیاتی منصوبوں کے لیے ابھی اور 2,000 ارب چاہیے, جیب تو اس سے پہلے سے خالی ہو چکی ہے. تو اگر تنقید کا نشانہ بنانا ہے یا کسی امید کی توقع رکھنی ہے تو وہ صوبائی بجٹس کے اندر ہے, جو کچھ کام کیے بغیر, ان کو کچھ ہاتھ پیر مارے بغیر وفاقی حکومت سے 7 سے 8 ہزار ارب گھر بیٹھے مل جاتے. تو فاروق صاحب اس میں لیکن میں بھی آپ ایڈ کو کر دیتی ہوں. صوبائی بجٹس میں تو اس بار زرعی انکم ٹیکس کی بازگشت ہے نا, کہ 1 جولائی سے تمام صوبوں نے زرعی انکم ٹیکس لگانا ہے, تو اس بار تو ٹیکسیشن ہے پروونسز میں. اچھا مزمل صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں جو ہے ٹیکس کی بات اس لیے کرتی ہے کہ وہ اپنے عیب چھپانا چاہتی ہے. آپ اگر حقائق دیکھیں تو آج سے کوئی 13 یا 14 سال پرانا بجٹ 2010 کا بجٹ نکالا, اس میں حکومت کا ٹیکس کے حوالے سے تخمینہ, حکومت کا اپنا تخمینہ یا امید, وہ 1,000 ارب کے ٹیکسز تھے. اب ہمیں پچھلے سال حکومت نے خود سے بتایا ہے کہ 12,000 ارب کے ٹیکسز اکٹھے کر لیے گئے. تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ٹیکس کی شرح کتنی تیزی سے بڑھی ہے اس ملک کے اندر. 1,000 ارب ٹیکس دیتے تھے, اب 12,000 ارب ٹیکس پہ پہنچ گئے ہیں. مسئلہ ٹیکسز کا نہیں ہے. دیکھیے اگر بیماری جو ہے وہ دل کی ہوگی اور آپ جگر کا علاج کرتے چلے جائیں کبھی صحت یابی ہو پائے گی؟ دیکھیے سو لاجیکل. اصل بیماری یہ ہے کہ حکومت تقریباً 2,400 ارب بجلی کے سیکٹر میں نقصان کر چکی ہے. حکومت پی آئی اے میں دیکھیے, حکومت پاکستان شاید واحد حکومت ہے دنیا بھر کی جو پہلے پورے ملک میں جو بجلی بنتی ہے اس کو خریدتی ہے اور پھر وہ خریدی ہوئی بجلی فروخت کرتی ہے, اور اس خرید و فروخت میں کوئی 600 ارب سالانہ نقصان کر جاتی. پی آئی اے کی ٹکٹیں پی آئی اے چلاتی ہے, کوئی 830 ارب کا نقصان اس میں کر چکی ہے. پھر گندم کی خریداری ہوتی ہے, وہ پیسکو کا ایک ادارہ بنا رکھا ہے, پیسکو کا ادارہ کوئی 900 ارب کا نقصان کر چکا. اب آپ فوکس کریں کہ ٹیکسز کے اوپر کی جی پرابلم ٹیکسز ہے, بیماری ٹیکسز ہے. اصل بیماری تو حکومت کے نقصانات ہیں.
पाकिस्तानी ऐसा है जो टैक्स ना देता हो? वो पाकिस्तानी जिसके घर में बिजली का बिल नहीं लगा वो शायद टैक्स नहीं देता, बिजली का मीटर नहीं लगा, जिसके पास जो पेट्रोल नहीं खरीदता, जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है, जो सिम नहीं लेता, जिसने जिंदगी में कभी पेट्रोल या डीजल नहीं खरीदा, वो पाकिस्तानी ऐसा हो सकता है जिसने टैक्स ना दिया हो। बाकी तो पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स देते हैं। सब टैक्स दे। प्रॉब्लम 18वीं तरमीम। अच्छा फारूक साहब, गवर्नमेंट बड़ी कॉन्फिडेंट है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि अगले 5 साल तक मुल्क की तरक्की की जो शरह है वो 6% तक लेके जाएंगे। हाउ इज दिस पॉसिबल? और इस साल 4.2 का उन्होंने फोरकास्ट किया है। देखिए, अब यहाँ पे एक और एलिमेंट आप ऐड कर लीजिए। जिस शरह से हमारी आबादी बढ़ रही, अगर 3-3.5% से आबादी बढ़ रही है और एहसन इकबाल साहब का ख्वाब पूरा भी हो जाता है, चांसेस बहुत कम है पूरा होने के। अगर पूरा हो जाता है तो आप सोचिए कि 4, आपने कहा 4.2, तो 3.5 उसमें से आबादी की शरह। तो इसका मतलब है कि आपका ख्याल है कि फिर तो पाकिस्तान को 9% पे ग्रो करना चाहिए अगर आबादी 3.5% पे है ग्रोथ। या वो कर लें या आबादी की शरह कम कर लें, मुज़म्मिल साहब आपकी मर्जी है। नहीं, वो दूसरा वाला काम जरा मुश्किल है। मैंने कहा तरक्की ज्यादा तरफ ले जाएं, बच्चे कम करना तो बहुत ही मुश्किल है पाकिस्तान। फारूक साहब, कोई भी हुकूमत सीरियस व संजीदा नजर नहीं आती है कि मुल्क की तरक्की कितनी इंपॉर्टेंट है और असल इलाज, जैसा कि जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया है, अखराजात हुकूमती वहीं के वहीं हैं, तरक्याती मंसूबों पे उतना इन्वेस्ट किया जा रहा है जितनी ज़रूरत नहीं है। आखिर इस सारे मसले का हल कैसे निकल पाएगा? कौन सी गवर्नमेंट सीरियस आपको नजर आएगी आने वाले टाइम में? मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपसे 100% इख्तलाफ करना चाहता हूँ। ठीक है। देखिए, ये हुआ है, मैं पिछले 20 या 25 सालों से कोशिश कर रहा हूँ पाकिस्तान की मईशत को किसी हद तक सियासत को समझने की। मैं ये समझ पाया हूँ कि माशी ढांचा जो है वो जो गोल अचीव करने के लिए बनाया गया है वो 100% अचीव कर रहा है। आपका कहना है कि शायद वो फेल हो रहा है, वो काम नहीं कर रहा। कैसे? ये इसलिए बनाया गया था कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जेब से दौलत का तबादला करना है टूवर्ड्स 40, 50 या 100 माफिया या कार्टेल्स जो पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं। नहीं, पर बेहतरीन। लेकिन इस बार तो वो कह रहे हैं ना, एनफोर्समेंट से हमने टैक्स लिया है, माफिया और कार्टेल से हमने, सीमेंट माफिया से को हाथ डाला है, सिगरेट माफिया को हाथ डाला है, चीनी माफिया को हाथ डाला है। ये गवर्नमेंट तो माफियाज पे बहुत हाई हैंडेडनेस दिखा रही है। ऑर्डिनेंस भी लाए हैं, टैक्स भी उनके बैंकों से निकाल के हुकूमत ने रिसीव कर लिया है। अगले साल भी इन्फोर्समेंट में 300 बिलियन है। तो अब तो माफिया के लिए टफ टाइम शुरू है। बिजली चोरी के खिलाफ भी था, गैस चोरी के खिलाफ भी था, लेकिन सूरत हाल आपके सामने। मुज़म्मिल साहब, आप जो हुकूमत कहती है उस पे गौर कम कर दें, और जो देखिए, कहने की बात कुछ और है, करने की बात कुछ और। मैंने आपसे कहा था कि कोई 600 अरब रुपए की चोरी हो रही, और वो आपकी और मेरी जो ईमानदार पेयर है उसकी जेब से निकल रहा है, और जो खसारा है वो ईमानदार के सर के ऊपर, शोल्डर के ऊपर पूरा किया जा रहा है। मैंने आपसे पीआईए का जिक्र किया, 830 अरब बताया मैंने आपसे पैस्को का जिक्र किया, 900 अरब रुपया वहां बताया मैंने आप। तो वहां पे मुझे बताइए कि कोई कदम उठाया जा रहा है उस तरफ? ना तो जरूर लगता। अच्छा, ये सैलरीड क्लास पे टैक्स कम हो रहा है या नहीं, कोई अच्छी खबर बात करते हैं। सैलरीड क्लास पे कोई 2.5%, 5% की जो नवीद है, आपके पास क्या खबर है कि कुछ सैलरीड क्लास पे 2.5% कम हो रहा है, 5% कम हो रहा है या नहीं हो रहा है? मुज़म्मिल साहब, आप निकल जाएं लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में किसी बाजार में, और किसी ऐसे शख्स को पकड़ लें कि जिसकी आमदन जो है वो 18,000 हो और उसके अखराजात 26,000 हो, को कर लें कि जी आप मेरे ऊपर कोई मेहरबानी कर दें, आप उससे तवक्को ये रख लें कि आपको रिलीफ मिलने वाली है,
बात सुनाई जा रही है, ये सुनी जा 10% रिलीफ दी जाएगी उनकी किसी स्लैब के बेसिस के ऊपर, लेकिन साथ ही साथ पेट्रोलियम लेवी बढ़ जाएगा। बिकॉज अगर आप 10% यहाँ पे कंसेशन दे रहे हैं और आपने IMF से वादा कर रखा है कि हमारा प्राइमरी सरप्लस जो है वो लाजमी है बजट में आना, तो फिर आपको कहीं और जो है वो टैक्स लगाना पड़ेगा। तो एक जेब से आपको अमाउंट निकाल ली जाएगी। बहुत शुक्रिया बहुत खूब फारूक साहब, थैंक यू सो मच। मुज़म्मिल साहब ब्रेक लेते हैं। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा इसमें। आप इख्तलाफ करते हैं फारूक साहब से? वो तो मुझे नजर आ रहा है। मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा हूँ। देखिए, आम आदमी के हालात बड़े मुश्किल हैं। महंगाई मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। अगर 5 या 10% का तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ आ भी जाता है तो किसको फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। फर्क तो 2000 से भी पड़ता है ना। जब आपका 2000 टैक्स बढ़ता है तो आपको फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं कहता फर्क नहीं पड़ेगा ना, मतलब आप सियासी बात कर रही हैं ना। मैं समझता हूँ टैक्स शरह, देखिए ना, ये तो ऐसी है जैसे आपने कहा जी कि 22% से हम 11% पे 1-2% करके शरह सूद को नीचे लाए हैं। टैक्स स्लैब को भी 1-2%, 5% करते करते 5 साल में नीचे लाएंगे। आपका ख्याल है कि कोई हुकूमत इस काबिल हो सकती है कि एक टैक्स शरह 20% है उसे अगले साल 0 कर देगी? नहीं कर सकेगी। पर 20 से 15 पे लाएगी, 17 पे लाएगी, 15 से 12 पे लाएगी, 12 से 10 पे लाएगी। ग्रेजुअल होता है इकोनॉमी में। मैं ये नहीं समझता कि एक इकट्ठा होगा। लेकिन मैं इस हद तक फारूक सलीम साहब से ज़रूर करता हूँ कि पाकिस्तान जो है, जो इदारे खसारे में चला रहा है, उनको ले ऑफ नहीं कर सका। मतलब हम कोशिश के बावजूद PIA नहीं भेज सके। ठीक है, उन्होंने गंदम की बात की, लेकिन आप देखें ना कि हुकूमत ने गंदम खरीदना बंद की है। कितना शोर है। अब गंदम खरीदने में हुकूमत को लॉस था। हुकूमत ने अगर गंदम खरीदने से इनकार कर दिया है तो आप देखें किसान एहतजाज कर रहा है, सब एहतजाज कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं नहीं आप ज़रूर गंदम खरीदें। एक तरफ हमारे मईशतदान ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को ये काम नहीं करने चाहिए, लेकिन जब हुकूमत ये काम नहीं करती तो फिर हुकूमत पर तनकीद करते हैं कि हुकूमत ये काम नहीं कर रही। मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तरफ अवामी रद्द-ए-अमल आ जाता है, एक तरफ माशी रद्द-ए-अमल आ जाता है। तो दरमियान में से अवामी और माशी रद्द-ए-अमल में के दरमियान में से जो रास्ता निकालना है उसी को बजट कहते हैं। ये तो हर हुकूमत को फिर आपको पता है कि भुगतना तो पड़ता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी बजट का ही डिस्कस करेंगे। एक और गेस्ट के साथ हमारे साथ रहिए।